Yes, student, as we have completed the previous chapter, so hope you have completed the question answers also. So today we are going to start with our next topic, the Mughal Empire. Okay, when after the Delhi Sultanate, so there was a new empire established in India, the Mughal Empire. So students are still joining. So as in the previous chapter, we have discussed that to establish such a large empire, it is not easy. But Mughals, they have established a large empire for many years that has a political legacy even on our country. Okay, so yes, so I hope this is visible to everyone. So what do you see in this picture? Yes, what do you see in this picture? Yes, Red Fort. It is Red Fort. Yes, Suhana and Vani, it is Red Fort. And this Red Fort is in New Delhi. And this Red Fort is also constructed by Mughal emperors. Okay? Mughal जो rulers say they have got it constructed, and still it is a political legacy of that empire, because still on independence, our prime minister, he hoists first flag on this Red Fort, okay, on every Independence Day. So this is the political legacy of this Mughal rulers, and these Mughal rulers, they have expanded their kingdom from Agra to Delhi, starting from Agra to Delhi in 17th century, and they administer whole of the continent. Okay, starting earlier they have controlled Delhi, and starting slowly उन्होंने all continent में India, all the parts of India, as well as Iran, Iraq, ठीक है, Afghanistan, so all this area, that is all under the Indian subcontinent. So over all this area, the Mughals, they have established their rule. So first we will discuss the who are these Mughals. Okay, first we will discuss that who are these Mughals. So these Mughals, they are the descendants. Descendants means कि उनकी ही डायनेस्टी के आगे जो रूलर्स हैं वो चले आ रहे हैं. ठीक है, डिसेंडेंट्स किसके हैं? एक तो वो तैमूर डायनेस्टी के. ठीक है, तैमूर जैसे उनकी, अगर हम कहें कि फादर की साइड, उनकी फादर की साइड तैमूर जो लाइनेज है वो है, और मदर की साइड गेंगीज खान, जिसकी हमने पिछले चैप्टर में बात की थी. मंगोल अटैक्स, मंगोल्स वर अटैकिंग दिल्ली सल्तनत, दिल्ली रूलर्स. ठीक है, तो मंगोल्स जो थे, तो गेंगीज खान, ही वाज द रूलर ऑफ मंगोल एम्पायर दैट वाज ओवर चाइना एंड सेंट्रल एशिया. और तैमूर, he was ruler on Iran, Iraq and present Turkey. So these Mughals, they are the descendants of both these lineage, Taimur as well as Genghis Khan from mother side and Taimur from father side. But these Mughals, they don't like to be called as Mughals. ये जो Mughals थे, वो नहीं चाहते थे कि हमें मुगल्स बोला जाए. क्यों? बिकॉज गेंगीज खान की जो भी हिस्ट्री रही है, इट हैज बीन रिलेटेड टू द मैसेकर ऑफ इनन्यूमरस पीपल. बहुत ब्लडशेड किया है उसने, बहुत ही मैसेकर किया है. ठीक है, तो इसलिए वो अपने आप को गेंगीज खान के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे. दे डोंट, क्योंकि मुगल्स जो कहते हैं, वो कहते हैं जो मंगोल्स के एरियाज के थे. ठीक है, अब इसी तरह जो उज़्बेक्स हैं, वो भी मंगोल का ही एक ट्राइब है. ठीक है, जैसे गेंगीज खान
वैसे ही उज़्बेक्स भी हैं, वो भी मंगोल्स के ही ट्राइब हैं, उसके ही रूलर्स थे, तो उनको उनके लिए भी मुगल्स वर्ड यूज किया जाता था। तो इसलिए कई बार ये मुगल्स अपने आप को नहीं चाहते थे कि दे शुड बी कॉल्ड एज मुगल। क्यों? क्योंकि मुगल्स हिस्ट्री हैज बीन रिलेटेड टू द मैसेकर, बट दे वांट टू बी कॉल्ड प्राउड ऑफ द तैमूरिद डायनेस्टी। तैमूरिद डायनेस्टी जो एंसेस्ट्री है उनकी, जो जितने भी एंसेस्टर्स रहे हैं सारे, तो तैमूरिद एंसेस्टर्स को वो अपना कहना पसंद करते थे, उसके वो प्राउड फील करते थे, बिकॉज इसी एंसेस्टर ने अर्लियर दे हैव कंट्रोल दिल्ली, दे हैव एस्टैब्लिश्ड द रूल ओवर दिल्ली। तो उनकी बहुत ब्रेवरी वाली हिस्ट्री रही कि वो बहुत ब्रेव थे, ठीक है। एज इफ यू सी इन योर बुक, so there is also, they have got pictures prepared. लोला है ना, लोली मारूंगा ऊपर साथ दे बेसनु कुत्ते चम्मच टिकने कलाइयां लोलियां मराइयां छुने लगाइयां। Yes बच्चे, बेसनु कल you have to mute yourself, ठीक है, so that there should not be disturbance. First, so there should not be disturbance where you are sitting. If your brother and sisters are with you, so you should sit in silence for your class. तो ठीक है, you should sit in silence. Yes, so this you can see, this is a picture of Mughals. It has been shown in your book, ठीक है। So they also got these miniature paintings created. इसमें सेंटर में यहाँ पर जैसे तैमूर है, ठीक है, ये सेंटर में तैमूर की पिक्चर बनी हुई है, फिर बाकी सारे डिसेंडेंट बाबर, औरंगजेब, ठीक है, ये सारे उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो वो तैमूर की ही पिक्चर्स भी अगर बनवाते थे तो तैमूर की ही बनवाते थे। तो मतलब वो तैमूर के जो डिसेंडेंट्स थे वो कहलाना पसंद करते थे, दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज मंगोल्स, ठीक है, वो मंगोल्स के साथ अपने आप को जोड़ना पसंद नहीं करते थे। तो इसमें से जो हम सबसे पहले जो मुगल एम्पायर जो रूल स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट बाबर, तो बाबर ही डिफीटेड दिल्ली इन 1526, उसने जो था दिल्ली के ऊपर कैप्चर किया। इब्राहिम लोदी, जो पिछले चैप्टर में हमने की लोदी डायनेस्टी, तो लोदी डायनेस्टी के जो रूलर थे इब्राहिम लोदी, he defeated that Ibrahim Lodi and he established his rule. तो उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, लेकिन जब वो 12 साल के थे, even then he succeeded to the throne in 1494 in Fargana when he was just 12 years old. लेकिन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ उज़्बेक्स, इसलिए उज़्बेक्स के अगेंस्ट भी थे, उज़्बेक्स ने अटैक कर दिया था, तो इसलिए वो अपना जो एरिया था इन्वेजन, उसके इन्वेजन की वजह से उनको छोड़ना पड़ा, ठीक है। सो फर्स्ट कई साल वो ऐसे वॉन्डरिंग करते रहे, फिर काबुल पे उन्होंने अटैक किया वहां पे, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी ने ही उनको बुलाया था, और कि इब्राहिम लोदी का ही आगे जो गवर्नर था, ठीक है, दैट इज सेपरेट स्टोरी, उसने ही उसको बुलाया था बाबर को कि यहाँ पर आकर अटैक करो, तो इब्राहिम लोदी को फिर उसने डिफीट कर दिया था। तो इसी तरह डिफरेंट रूलर्स हैं जो मुगल्स के, वेरियस लाइनेज हैं मुगल्स की जिन्होंने की यहाँ एम्पायर अपना एस्टैब्लिश किया और रूल किया। सो वेरियस मुगल एम्परर्स, देयर आर फर्स्ट बाबर, ठीक है, जिसकी हमने अभी बात की, तो बाबर he ruled from 1526 to 1530, ठीक है, 4 years तक उसने यहाँ इंडिया में रूल किया, from 1526 to 1530। देन हुमायूं, ठीक है, फिर उसके बाद हुमायूं ने रूल किया, हुमायूं ने 1530 से 1540 तक रूल किया। फिर उसके बाद जैसे हमने पिछले चैप्टर में वी हैव रेड कि शेरशाह सूरी, he has established his rule over Delhi for 15 years, 15 साल के लिए उसका रूल था। तो from 1540 to 1555 इन बिटवीन जो था, ठीक है, जो इन बिटवीन रूल था वो था सूरी डायनेस्टी का।
ठीक है, जो इन बिटवीन यहाँ पे रूल था तो वो सूरी डायनेस्टी का रूल था, ठीक है। एंड देन अगेन जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई, फिर उसके डिसेंडेंट्स जो थे वो वीक थे, फिर दोबारा जो हुमायूं था उसने दोबारा से आया, कंट्रोल उसने अटैक किया, फिर उसने दिल्ली को सूरी डायनेस्टी से दोबारा रिवाइव कर लिया, ठीक है। फिर उसका हुमायूं का रूल एस्टैब्लिश हो गया फ्रॉम 1555 टू 1556। क्लियर? पहले बाबर, ठीक है, बाबर फॉर 4 इयर्स, बाबर सिर्फ 4 साल के लिए था, ठीक है। पहले ये 10 इयर्स के लिए 1530 टू 1540, और फिर उसके बाद 15 इयर्स के लिए ये सूरी डायनेस्टी थी, और फिर ये 1 साल के लिए 1555 टू 1556 ये हुमायूं की डायनेस्टी। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल था ही वाज रूलर अकबर, ठीक है। हुमायूं के बाद अकबर, जब हुमायूं की डेथ हो गई तो अकबर अभी 13 इयर्स का था, ठीक है। तो अकबर को उसका रूल दे दिया गया, ठीक है। और अकबर के बाद जब वो छोटा था, पहले तो बैरम खान के बैरम खान पावर यूज कर रहा था, ठीक है, इन द नेम ऑफ अकबर। फिर जब वो बड़ा हो गया तो फिर उसने अपनी पावर रिवाइव कर ली। तो अकबर का जो रूल टाइम पीरियड था 1556 टू 1605, तो 49 इयर्स तक इसने रूल किया, ठीक है। सबसे ज्यादा रूल जो था मुगल 2 एम्परर्स ने किया था, एक अकबर ने, ठीक है, और दूसरा औरंगजेब, ठीक है। वन वाज अकबर एंड सेकेंड औरंगजेब, अकबर और औरंगजेब। तो सेकेंड, फिर उसके बाद जहांगीर, जहांगीर का भी जो टाइम पीरियड था वो 1605 टू 1627। 1605 से वो सिर्फ 22 इयर्स का था। तो जहांगीर ने भी सिर्फ 22 इयर्स तक रूल किया, ठीक है। अब जहांगीर अकबर का बेटा था, ठीक है। एंड उसके बाद फिर शाहजहां ने 1627 से 1658 तक रूल किया। अब इसके बाद अब ये इन दोनों का भी रूल, ज्यादा रूल किसका था? अकबर का। उसके बाद नेक्स्ट औरंगजेब आया, ये भी बहुत क्रूअल रूलर था, ठीक है, क्रूअल रूलर था औरंगजेब भी। तो इसने 1658 से 1707 तक रूल किया। तो अब ये जो औरंगजेब के टाइम पीरियड में, अब हम कह सकते हैं कि जो अकबर था, ठीक है, अकबर बहुत ही एक सेकुलर रूलर था, उसने सभी रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट की, लेकिन अभी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो लेकिन जो औरंगजेब था, ये जो मुगल की हम कह रहे हैं कि ट्रेडिशंस चले आ रहे थे उनको भी फॉलो नहीं करता था, रिस्पेक्ट नहीं करता, जबकि बाकी मुगल रूलर अपने जिनको हरा भी देते थे उनके भी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। जो मुगल रूलर अगर किसी को हरा देते थे उसकी भी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन ये औरंगजेब ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी मुगल रूलर्स के लिए। एंड जो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था वो ये औरंगजेब ही था। सो इसके बाद अब हम करते हैं कि अब ये हो गए डिफरेंट मुगल एम्परर्स कि विच मुगल एम्परर्स दे रूल्ड ओवर दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के नाम से ही वो चल रहे थे, मुगल एम्पायर, तो कैपिटल दिल्ली थी उनकी। तो इस मुगल एम्पायर पे इन सभी मुगल रूलर्स ने रूल किया और उन्होंने अपने एम्पायर को कैसे कंसोलिडेट किया, कैसे एक्सपैंड किया, ठीक है। अब इसमें सी फ्रॉम दिस मैप दैट देयर आर वेरियस प्रोविंसेस, ठीक है। अब ये सारे एरियाज हैं विच वर मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब, ठीक है। अकबर और औरंगजेब के अंडर ये डिफरेंट मिलिट्री कैंपेन्स रहे हैं। So ये all areas, so see these are the areas, ठीक है, in Iran, Iraq, ठीक है, all by Pakistan। तो ये सारे areas, तो यहाँ से एक area, ये सारे areas, ठीक है, in the south, so these all areas were under the Mughal Empire. So these all but that I have underlined with black, so these are the central provinces. तो ये सेंटर के जितने भी प्रोविंसेस थे मुगल एम्पायर के वो थे, ठीक है। ये सारे एरियाज ये सेंटर में आ रहे हैं, बाकी ये सारे आउटर साइड में हैं, ठीक है। तो ये भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ दीज मुगल एम्पायर्स।
तो ये सारे सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, ठीक है, दिसंबर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, चित्तौड़, रणथंबोर, इलाहाबाद, these all are central provinces of Mughal empire. ठीक है, उसके बाद देन द मुगल्स, ये हो गए मुगल डिफरेंट रूलर्स कि मुगल रूलर्स कौन कौन से थे, ठीक है, एंड देयर मिलिट्री कैंपेन्स कि उन्होंने जो मिलिट्री कैंपेन किया, ठीक है, फर्स्ट बाबर, देन अगेन नेक्स्ट रूलर टिल औरंगजेब, and they established a large empire. And now we will discuss that what was their tradition of succession. ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं कि एक पहले राजा है, फिर उसका बेटा है, फिर उसके जरूरी कि सबसे बड़े बेटे को सारा राजा बनाया जाए या किसको राजा बनाया जाए, ठीक है, तो वो है ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन कि किसको बनाया जाए राजा, हु विल बी द नेक्स्ट किंग. So this is the tradition of succession. So मुगल्स जो थे तो दो तरह के सक्सेशन होती है, एक होती है प्राइमोगेनिचर एंड सेकंड इज द कोपार्सिनरी. अब प्राइमोगेनिचर में क्या होता है कि द एल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़ा सन होता है, ही इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, कि जो भी उसके फादर की पोजीशन है सब कुछ वो सबसे बड़े बेटे को मिल जाता है. और जो कोपैर्सिनरी है उसमें कहते हैं कि डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस, जो भी इनहेरिटेड है वो सभी डिवाइड हो जाएगा अमंग ऑल द सन, जितने भी बेटे हैं. तो मुगल जो थे वो बिलीव करते थे कोपैर्सिनरी में, ठीक है, कि ऑल सन्स, कि सभी सन्स में वो इक्वली जो प्रॉपर्टी है, जो भी इनहेरिटेंस है उनकी, वो आगे डिवाइड की जाएगी. ठीक है, तो इसलिए कई बार आपस में जो हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से वो भी हो जाते थे. ठीक है, तो ये हो गया उनका ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की उनकी सक्सेशन कैसे होती. Yes, any doubt from the points that we have discussed, that why they want to be not to be called as Mughals? ठीक है, what were the different Mughal emperors, what was their ruling time period, ठीक है, what was the areas that under their control, what was the tradition succession, which military campaigns, what areas they got there under their control, there's all the provinces, ठीक है, and the tradition of succession divided among the all sons. Clear? So now moving further, Mughal relations with the other rulers. अब वो क्या कर रहे हैं, they are expanding the territory. ठीक है, बहुत सारे जो रूलर्स हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहले भी इंडिया में हैं. ठीक है, जब वो अपना जहां पे वो एक्सपेंड कर रहे हैं, मिलिट्री कैंपेन कर रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी कोई ना कोई रूलर तो होगा ना. सो व्हाट वाज देयर रिलेशन विद अदर रूलर्स, दूसरे रूलर्स के साथ उनका रिलेशन कैसा था. सो अब दूसरे जो रूलर्स थे यहाँ पे, सो सम रूलर्स वर देयर, कुछ रूलर्स तो ऐसे थे कि दे इजीली एक्सेप्ट देयर देयर रूल. ठीक है, कि वो बहुत उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे. ठीक है, कि दे वर एक्सेप्टिंग देयर अथॉरिटी, एक्सेप्ट करते थे अथॉरिटी एंड ज्वाइन, और उनको ज्वाइन कर लेते थे. उन्होंने अपने आप उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया और ज्वाइन कर लिया जो दूसरे रूलर्स थे. ठीक है, कुछ रूलर्स ऐसे भी थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी दे गॉट देयर डॉटर्स मैरिड, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी. मुगल रूलर्स थे. ठीक है, जैसे जहांगीर की मदर, वो भी एक राजपूत रूलर की प्रिंसेस थी. ठीक है, शाहजहां ने भी एक राजपूत रूलर की बेटी से ही मैरिज करवाई थी. तो इस तरह कई जो रूलर्स थे, दे गॉट देयर डॉटर्स मैरिड, वो अपनी डॉटर्स की शादी करवा देते थे. ठीक है, डॉटर्स की शादी करवाने के बाद फिर उनको कोई ना कोई मुगल्स की तरफ से हाई पोजीशन मिल जाती थी. ठीक है, जब उन्होंने करवा दी शादी तो कोई ना कोई हाई पोजीशन उनको मिल जाती थी मुगल एम्पायर में. जो मुगल एम्पायर है पूरा, उसमें कोई ना कोई उनको हाई पोजीशन मिल जाती थी.
और कुछ रूलर्स ऐसे भी थे दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ठीक है, और कुछ रूलर्स ने मना कर दिया कि हम आपकी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सो देन दे हैव टू फाइट विद द मुगल रूलर्स, फिर उनको लड़ना पड़ता था। दोज हु हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी, सो इफ दे वर डिफीटेड, अगर वो हार भी जाते थे तो मुगल्स का जो क्राइटेरिया था, जो उनका ट्रेडिशन था, तो वो क्या था, वो एक बैलेंस बना के रखते थे, उनके साथ ऑनरेबली ट्रीट करते थे, ठीक है। अगर कोई जैसे वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, मुगल्स ने उनको हरा दिया, दे हैव बीन डिफीटेड, तो उनको क्या किया जाता था, बड़ी उनको ऑनरली ट्रीट किया जाता था, ठीक है, उनकी टेरिटरी उनको वापस कर दी जाती थी, और वहां पे उसी टेरिटरी में उनको मतलब जैसे जो भी उनकी जागीर या जो भी उनका वतन, जैसे वतन वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, तो वतन यार जागीर वो उनको वापस कर दी जाती थी, तो दे वर गिवन बैक, तो ऑनरली ट्रीट किया था। लेकिन इसी में एक ऑप्शन आपकी बुक में दी हुई है कि जो औरंगजेब था उसने ही हैज इल ट्रीटेड विद द इंसल्टेड विद शिवाजी रूलर, ठीक है। तो पहले हमने कहा था कि जो औरंगजेब था ही वाज वेरी क्रूअल रूलर, तो इसलिए उसने ये जो उनका ट्रेडिशन था टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ऑनरेबल रिस्पेक्ट टू इवन द डिफीटेड रूलर्स, ठीक है, तो ये चीज उसने फॉलो नहीं की, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस, सो ही वाज नॉट एबल टू मेंटेन द बैलेंस ऑल द टाइम बिटवीन दिस ट्रेडिशन। सो दिस वाज द रिलेशन विद अदर रूलर्स, ये उसका दूसरे रूलर्स के साथ रिलेशन है मुगल्स का, ठीक है, कि some have accepted the authority and some have refused to accept, and the persons who have refused to accept, they have to fight, and if they are defeated, then their watan or jagir, it will return, it was returned back by the Mughals to those rulers. And then now comes ki when how Mughals they were administering the whole territory. अब Mughals ने empire बहुत बड़ा कर लिया है, as we have discussed in Delhi Sultan कि they have started the iqtadari system, ठीक है, iqtadars, they have appointed iqtadars, governors, different. So in the same way Mughals, they have also established some system to collect the administer the territory, अपनी territory को administer करने के लिए उन्होंने भी कुछ बनाया हुआ था, proper arrangement what they have done. So before moving, all these points are clear? Yes बच्चे? Yes Navya? Okay, clear. You have raised your hand बच्चे, so why? मैम सॉरी मैम, गलती से हो गया था। Okay, so now moving further कि what are mansabdar and jagis, as we have discussed about iqtadar, ठीक है, जैसे हमने iqtadars के बारे में डिस्कस किया था, so in same way we will discuss about now the mansabdar and jagirdar, ठीक है, यहाँ पे हम किसके बारे में करेंगे, mansab दार्स एंड जागीरदार्स, ठीक है, सेम जैसे हमने अभी बात की कि जो डिफीट हो जाता था उसको वतन और जागीर वापस कर दी जाती थी, मींस उसको उसकी जागीर दे दी और उसको वहां का जागीरदार भी अपॉइंट कर दिया जाता था, ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंस। लेकिन अब मनसबदार है कौन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनसब? मनसब का मीनिंग होता है अ पोजीशन, ठीक है, कि वो इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, मनसब क्या है, एक पोजीशन है, एक रैंक है, ठीक है, मतलब कोई भी पोजीशन है उसकी या रैंक है और जिसके पास वो पोजीशन है वो मनसबदार है, ठीक है। अब मनसबदार, सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ मनसबदार कि जिस पर्सन के पास एक पोजीशन है, जिसको राजा ने पोजीशन दी हुई है, अपॉइंट किया हुआ है, तो वो मनसबदार है, ठीक है, he has a position and he has a rank, तो that he is a मनसबदार। और उस मनसबदार जो अपॉइंट किया गया है, अब
उस मनसबदार की राजा की तरफ से रैंक उसका बनाया गया है, ठीक है। राजा की तरफ से उसको सैलरी दी जा रही है, जो मनसबदार है, ठीक है, उसका रैंक फिक्स किया गया है राजा की तरफ से, ठीक है। ही इज गिवन सैलरी ऑल्सो, ठीक है, एंड ही हैज सम मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस भी किया था, जो इक्तादार्स होते थे मुक्तीज होते थे, ठीक है, मुक्तीज, और उन मुक्तीज के पास भी सेम उनकी भी जैसे था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और मिलिट्री जो उनकी ड्यूटीज होती थी वो भी परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो इसमें भी उनको सैलरीज भी मिलती थी, ठीक है। हर एक की अलग एक पोजीशन होती थी, हर एक मनसबदार की, बहुत सारे डिफरेंट मनसबदार होते थे और उनकी अलग अलग रैंक होता था, अलग अलग पोजीशन होती थी, ठीक है। उनको सैलरी पे की जाती थी एंड दे हैव मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ में उनको रूलर की तरफ से मिलिट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी दी जाती थी, ठीक है। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं। सो और ये जो उनका रैंक और सैलरी, ठीक है, जो उनकी सैलरी थी ये डिटरमिन की जाती थी न्यूमेरिक वैल्यू कॉल्ड ज़ैट, ठीक है। जो भी अब जिसकी ज़ैट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़ैट ज्यादा होगा इट मींस उसका पोजीशन उतनी ज्यादा है, ठीक है। जैसे अगर किसी को 5000 ज़ैट है और किसी का 1000 ज़ैट है, तो ज़ैट जिसका 5000 ज़ैट है उसकी पोजीशन ज्यादा ऊंची है, ठीक है। सो मोर देन 5000 ज़ैट, अलग अलग तरह की पोजीशन जो थी वो होती थी। सो नोबल विद ज़ैट ऑफ 5000 दे वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000 इन अकबर से। अब ज़ैट से ये पता चलता था कि किसका रैंक ज्यादा है, कौन हाई पोजीशन पे है, कौन लो पोजीशन पे है, ठीक है। सो ज़ैट क्या था, ज़ैट एक न्यूमेरिक वैल्यू थी, न्यूमेरिक वैल्यू की 5000 होगी कि 1000 होगी, ठीक है। तो वो न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि रैंक और सैलरी को डिसाइड, अब रैंक और सैलरी ज़ैट, ठीक है, ज़ैट में उनको कंसिडर की जाती थी। तो ज़ैट वाज डिटरमिन्ड एंड इफ द ज़ैट इज हायर, तो इसका मतलब उस जो मनसबदार है उसकी राजा के दरबार में पोजीशन बहुत अच्छी है, ही इज हैविंग अ प्रेस्टिजियस पोजीशन इन नोबल्स कोर्ट। अब मनसबदार को जो सैलरी मिल रही है, ठीक है, द सैलरी ही इज गेटिंग, तो ही इज गेटिंग द सैलरी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट्स। अब यस यहाँ पे बच्चे अभी हमने पहले किया मनसबदार क्या है, मनसब का मीनिंग हो गई पोजीशन, ठीक है। मनसबदार मीन हु इज होल्डिंग अ पोजीशन, वो मनसबदार हो गया। अब मुगल्स में मनसबदार के पास 3 तरह की चीजें थी, ठीक है। हर एक मनसब को रैंक दिया जाता था। अब प्रॉपर एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ था, मुगल्स ने एक प्रॉपर ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था, ये आप मान लो कि उनका ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम है कि किसी का रैंक ज्यादा है, किसी का रैंक कम है, किसी की सैलरी ज्यादा है, किसी की सैलरी कम है, ठीक है। उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग दी गई हैं। अब रैंक और सैलरी इट वाज डिटरमिन्ड इन ज़ैट, तो ज़ैट क्या होती थी, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। ज़ैट क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि रैंक और सैलरी डिसाइड करती थी। तो न्यूमेरिक, अब ज़ैट हम बोल सकते हैं कि इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, क्लियर, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर 5000 ज़ैट है, 5000 ज़ैट है, तो इट मींस उसका रैंक ज्यादा है। अगर किसी की 1000 रैंक है तो उसका जो ज़ैट 1000 ज़ैट है तो उसका रैंक थोड़ा कम है, ठीक है। तो हाईएस्ट द ज़ैट, हाईएस्ट विल बी हिज पोजीशन इन द कोर्ट, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चे नाउ, क्लियर। अब इसमें कि उनकी सैलरी, हाउ देयर सैलरी वाज बीइंग पेड, तो देयर सैलरी वाज बीइंग पेड इन रेवेन्यू असाइनमेंट्स, ठीक है, जो उनको जागीर मिली थी,
अब यहाँ पे हमने क्या है, जागीर क्या है कि द एरिया। अब इसमें भी जैसे मुक्तिस को एक एरिया प्रोवाइड कर दिया जाता था, इनको भी एक जागीर प्रोवाइड कर दी गई, दिस इज योर जागीर, ठीक है। एंड दिस इज वट एवर रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड फ्रॉम हेयर, इट विल बी योर सैलरी, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये थी कि जैसे इक्तादार उस टाइम पे जो मुक्ति थे, दे वर रिजाइडिंग इन दैट एरिया, वो उनको पूरी इक्ता जो भी दी जाती थी उसी इक्ता में वो रहते थे, दे वर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें जो जागीरदार है, मनसबदार है, दे वर नॉट लिविंग इन दैट एरिया, उनकी हो सकता है कि जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कहीं और रह रहे हो, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मैंने आप में से किसी एक को अपॉइंट कर दिया है कि आप ये ड्यूटी करोगे, ठीक है। तो इस तरह वो जरूरी नहीं है कि वो उसी जागीर में रहता हो जहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। कि वो मनसबदार कहीं और भी रह सकता है, लेकिन उस मनसबदार ने किसी और को वहां पे अपॉइंट किया हुआ है कलेक्ट करने के लिए। क्लियर? ये पॉइंट हो गया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वी विल कंटिन्यू दिस पॉइंट टुमारो। दिस इज क्लियर कि हु इज मनसबदार एंड व्हाट इज द ग्रेडिंग सिस्टम इन मुगल, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद दिस। क्लियर? यस भव्या। मैंने ये कहना था मैम, एक बार सैलरीज वाला जहांगीर वाला एक बार दोबारा से ये सैलरी वाला बच्चे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि इसको इसी को मैंने बोला ना कि ग्रेडिंग सिस्टम है, यही हम कंटिन्यू करेंगे कल इसी पॉइंट से। प्रीवियस ऑल पॉइंट्स आर क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके देन गो थ्रू द चैप्टर, ठीक है। आई होप यू हैव नोटेड डाउन द पॉइंट्स, गो थ्रू द चैप्टर, ठीक है, अंडरलाइन द पॉइंट्स आल्सो, ठीक है, एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।